Good morning, students. Today we are going to read lesson number 1 of Moments book. The name of the chapter is The Lost Child, which is written by Mulk Raz Anand. Mulk Raz Anand was one of the first Indian writers in English language. He has hundreds of novels, short stories, and essays to his credit. This is the story of a little boy who, like any other child, wants to buy everything he sees in the village fair where his parents take him one day. ये कहानी एक छोटे लड़के की है जो कि दूसरे बच्चों की तरह मेले में सब कुछ खरीदना चाहता है जब उसके माता पिता एक दिन उसको मेले में ले जाते हैं. Through the story, the writer has tried to tell us that a child's most precious treasure are his parents. इस कहानी के ज़रिए लेखक हमें ये बताना चाहता है कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही सबसे ज़रूरी हैं. दिस रियलाइजेशन कम्स टू हिम ओनली आफ्टर ही लॉसेस देम इन द फेयर. और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वो कहानी के अंत में मेले में खो जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट स्टोरी. It was time for the spring festival. All sorts of people dressed in colorful clothes came out of the lanes and were seen heading towards the fair. Some were walking, some rode on horses, and some were being carried in bamboo and bullock carts. यह स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम था. सभी लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले की ओर जा रहे थे. कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ के हाथों में बैम्बूज पकड़े हुए थे और कुछ बुलक कार्ट्स पर जा रहे थे. वन लिटिल बॉय ran between his father's legs. He was laughing away with excitement and happiness. एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी की लेग्स के बीच में से निकलकर दौड़ा. वह बहुत ही खुश था और एक्साइटेड था. When the child seemed to lag behind, the parents would beckon to him to walk alongside. जब बच्चा पीछे रह गया तो उसके माता पिता ने उसको आवाज़ लगाकर साथ चलने के लिए कहा. The boy saw the toys lined up in the shops and was attracted towards it, and that would slow down his walk. His eyes were glued to the toys, but he had to obey his parents. लड़के ने वहाँ पर दुकानों पर पड़े हुए खिलौनों की तरफ देखा और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और इस वजह से उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई. उसकी आइज़ खिलौनों पर अटक गई और वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता था. As he moved towards his parents, who were waiting for him to pull up with them, he could not resist asking them to buy him a toy, even though he knew very well that his parents would only stare at him and not buy him anything. जैसे ही वह अपने पेरेंट्स की ओर बढ़ा जो कि उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसने अपने माता पिता से टॉय ख़रीदने के लिए नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी तरफ घूर रहे थे और वो उसको टॉयज़ ख़रीद कर नहीं देना चाहते थे. The boy's father looked angrily at him, but the mother was not too hard on him. She was somewhat soft and tried to divert his attention by pointing towards the mustard fields in front of them. The fields looked like melting gold and spread out for miles and miles. लड़के के पिताजी ने उसकी ओर गुस्से से देखा, पर उसकी माँ ने मस्टर्ड फील्ड्स की ओर इशारा करते हुए बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की और उसको रिलैक्स करने की कोशिश की. खेत मीलों दूर तक फैले हुए सुनहरी रंग के दिखाई दे रहे थे.
One could see dragonflies with their purple wings and a black bee or butterfly in search of pollen from the flowers. The child started looking at these flying insects in the air. He saw that some of them would suddenly stop flapping their wings and sit down to rest. The child would then try to go near the insect to catch it, and just when he thought he had almost reached it, it would flutter its wings and fly off. In doing so, he would step out into the field, and the mother would then call out to come and join them on the pavement. लड़के ने मस्टर्ड फील्ड्स में ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बी और बटरफ्लाइज को उड़ते हुए देखा। उसने देखा कि इनमें से कुछ इंसेक्ट्स ने अपने पंख फड़फड़ाने बंद किए और चुपचाप फूलों के ऊपर बैठ गए। बच्चा एक इंसेक्ट पकड़ना चाहता था। जैसे ही वह उस इंसेक्ट के पास पहुंचा, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो वहाँ से उड़ गया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह अपने माता पिता के पीछे चलने लगा। As soon as the boy's mother called out, he, like an obedient child, ran happily and walked with her for some time, and then soon got left behind. As he got attracted towards different insects and worms that came out of their hiding places to enjoy the sunshine. Again finding him left behind, the parents now sat on the edge of a well under the shade of some trees and called out to him. The child again ran towards them. As he went close to them, a shower of flowers fell upon him from a grove. जैसे ही उस लड़के की माँ ने उसको बुलाया, वह एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह अपने पेरेंट्स के साथ मुस्कुराता हुआ चल पड़ा और फिर कुछ देर के बाद वह उनसे पीछे रह गया, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स को देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वह उनको देखकर खुश होने लगा। फिर से अपने बेटे को पीछे पाकर उसके माता पिता कुछ देर के लिए एक कुएं के किनारे पर एक पेड़ों के झुंड के नीचे बैठ गए और उसे बुलाने लगे। बच्चा फिर दौड़ता हुआ उनके पास आया और जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, तभी पेड़ों के झुंड से कुछ फूल उसके ऊपर आकर गिरे। He now got attracted towards the flowers which were falling like rain and started gathering the petals. So engrossed was he that he forgot about his parents. Just then he heard the cooing of doves and he ran towards his parents, and the petals fell off from his hands. वह अब उन फूलों की तरफ आकर्षित हुआ जो कि बारिश की तरह गिर रहे थे, और उसने उनकी पेटल्स को इकट्ठा करना शुरू किया। इस पल में वह अपने माता पिता को भूल गया था। तभी उसने डव्स की कूइंग की साउंड को सुना और वह दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया और उसके हाथ से पेटल्स सारी नीचे गिर गई। The parents beckoned him again. This time the child started running wildly around the banyan tree. The parents now picked him up and took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. पेरेंट्स ने एक बार फिर से उसको आवाज़ लगाई। इस बार बच्चा दौड़ता हुआ बनियन ट्री के पास से उनके पास पहुंचा। अब पेरेंट्स ने उस बच्चे को उठा लिया और वह तंग गलियों में से होते हुए मस्टर्ड फील्ड में से गुजरकर सीधा मेले में एंटर कर गए।
He now moved towards a shrine where people seemed to be gathering. Since it was a very crowded place, he had to struggle through the legs of the people, still sobbing away. He kept calling out for his father and mother. Near the entrance of the temple, it became very crowded. People were jostling and pushing each other to get in front. The child wanted to make way between their legs, but was knocked to and fro by their harsh movements. He was on the verge of being trampled under their feet, and he not shouted out for his father and mother at the top of his voice. A man heard his cry and turned towards him. He bent down and lifted him up in his arms. वह अब एक श्राइन की ओर भागा जहाँ पर कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वह स्ट्रगल करता हुआ उन लोगों की लेग्स में से निकलता हुआ आगे बढ़ा और वह बार बार अपने फादर और मदर के लिए चिल्ला रहा था। मंदिर के एंट्रेंस के पास भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे और कुछ लोग दूसरों को पीछे की ओर धकेल रहे थे। बच्चा उन लोगों की भीड़ में से उनकी लेग्स के नीचे से अपना रास्ता बनाना चाहता था, लेकिन वह उनके पाँव के नीचे कुचला गया। अब उसकी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से नहीं निकल रही थी। तभी एक आदमी ने उसकी रोने की आवाज़ को सुना और वो उसकी तरफ मुड़ा। उसने झुककर उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। The man who picked up the boy asked him how he got there and whose child he was. He took him out from the crowd into the open space. The child cried even more bitterly and kept saying he wanted his mother and father. जिस आदमी ने उस लड़के को उठाया था, उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम वहाँ पर कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। वह उसे भीड़ से बाहर ओपन स्पेस में ले आया। अब बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा he wanted his mother and father. The man tried to calm him down by distracting him. He took him to the roundabout and asked if he would take a ride. The child cried out even loudly and repeated that he wanted his mother and father. उस आदमी ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की और उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। वह उसको राउंड अबाउट के पास ले गया और बच्चे से पूछा कि क्या तुम इसकी राइड करना चाहोगे। लेकिन बच्चा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बार बार वही बात कहने लगा कि उसको उसके पेरेंट्स चाहिए। The man then took him to the snake charmer and tried to draw his attention to the music from the flute, but the child just shut his ears with his fingers and shouted for his father and mother. The man took him to the balloon man and again asked if he wanted the rainbow-colored balloon. The child sobbed and said he wanted his father and mother. तब वो आदमी उसको एक स्नेक चार्मर के पास ले गया और उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए उसने फ्लूट के म्यूज़िक को सुनने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और वो कहने लगा कि उसको उसके फादर और मदर चाहिए। तब वो आदमी उसको एक बैलून सेलर के पास ले गया और उसको कहा कि उसको कौन से कलर के बैलून चाहिए, लेकिन बच्चा रोने लगा और उसने कहा कि उसको उसके माता और पिता चाहिए। The man made yet another effort to calm the child and took him to the flower seller sitting near the gate and drew his attention to the
nice smell of the flowers. He asked if he wanted to put a garland around his neck. The child turned his nose away and repeated his chant for his parents. Finally, the man thought he could humor him by tempting him with sweets. But to no avail, the child simply said he wanted his father and mother. फिर वह आदमी उस बच्चे को फ्लावर सेलर के पास ले गया, लेकिन फ्लावर सेलर के पास जाकर भी बच्चे के मन को धैर्य नहीं मिला और ना ही उसका मन शांत हुआ। बच्चा बार बार अपने माता पिता को याद कर रहा था। अंत में उस आदमी ने सोचा कि शायद मिठाइयों से इस बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चे ने वहाँ पर भी किसी भी मिठाई की डिमांड नहीं की और वह बार बार अपने माता पिता के बारे में पूछ रहा था। So he wanted finally only one thing, his parents. इसलिए बच्चा केवल एक ही चीज़ चाहता था, अपने माता और पिता को। Thank you students. This is the complete explanation of the story The Lost Child. Thank you. Stay home, stay safe. As they came closer to the village, the child saw many other paths, all full of people converging towards the fair. जैसे ही वे गांव के नज़दीक पहुँचे, बच्चे ने वहाँ पर बहुत सारे रास्ते देखे, सभी लोगों से भरे हुए मेले की ओर जा रहे थे। The child felt confused when he saw so many people. बच्चा बहुत कंफ्यूज हो गया जब उसने वहाँ पर बहुत सारे लोग देखे। He somehow did not seem to enjoy this scene, but he was fascinated to see a new kind of world. वह बहुत खुश नहीं था, लेकिन एक नए संसार को देखकर वह बहुत हैरान हो गया। At the corner of the entrance, he saw a sweetmeat shop selling गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। एंट्रेंस के कॉर्नर पर उसने एक मिठाई वाले की दुकान देखी जो कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी बेच रहा था। ए बिग क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड द काउंटर। लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ उसके काउंटर पर इकट्ठी हो गई। The shopkeeper had decorated his sweets on leaves of gold and silver. दुकानदार ने अपनी मिठाइयों को गोल्ड और सिल्वर लीव से डेकोरेट किया हुआ था। The child saw this and he was tempted to eat बर्फ़ी। बच्चे ने इसकी ओर देखा और वह बर्फ़ी खाने के लिए उसका मन ललचाया। That was his favorite sweet. यह उसकी फेवरेट मिठाई थी। He slowly murmured that he wanted बर्फ़ी, but then he knew his parents would not buy it and tell him that he was being greedy. So he walked on. उसने हल्की सी आवाज़ में बुदबुदाया कि वह बर्फ़ी खाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसको ये बर्फ़ी खरीद कर नहीं देंगे और उसको कहेंगे कि वह लालची हो गया था, इसलिए वह आगे बढ़ गया। As they moved on, the boy heard a flower seller trying to sell garlands of गुलमोहर। जैसे ही वे आगे बढ़े, लड़के ने एक फूल बेचने वाले की आवाज़ सुनी जो कि गुलमोहर की मालाएं बेच रहा था। The child felt attracted by the flowers and went towards the basket where the seller had kept a heap of flowers. अब बच्चा उन फूलों की तरफ अट्रैक्ट हो गया और वह उस माला बेचने वाले की बास्केट की ओर गया जहाँ पर उसने काफ़ी सारे फ्लावर्स रखे हुए थे।
नाउ द चाइल्ड अगेन मर्मर्ड दैट ही वॉन्टेड द गारलैंड। अब बच्चे ने दोबारा से हल्की सी आवाज़ में कहा कि वह माला लेना चाहता था। वंस अगेन ही न्यू हिज विश वुड नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम द फ्लावर्स सेइंग दे वर चीप। वह जानता था कि उसकी ये भी इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि उसके माता पिता वो उसको माला खरीद कर नहीं देंगे और कहेंगे कि यह बहुत सस्ती थी। अगेन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वॉकड ऑन। इसलिए अपने माता पिता के उत्तर को जाने बिना ही वह आगे बढ़ चला। नाउ ही सॉ ए मैन स्टैंडिंग विद ए पोल ऑन विच hung all kinds of balloons in different colors flying in the air। अब उसने आगे एक पर्सन को खड़े देखा जिसने कि अपने पोल पर काफ़ी सारे बैलून्स लटकाए हुए थे जो कि अलग अलग रंग के थे। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कलरफुल बैलून्स एंड फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बाय देम ऑल। बच्चा उन बैलून्स को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वह उनको खरीदना चाहता था। वंस अगेन ही न्यू ही कुड नॉट गेट देम बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम सेइंग ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको यह बैलून खरीद कर नहीं देंगे और कहेंगे कि वह अब इन छोटे खिलौनों के साथ खेलने वाला बच्चा नहीं है। ही वॉक्ड ऑन फर्दर एंड ए लिटल अहेड ही सॉ ए स्नेक चार्मर हु वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट टू ए स्नेक सिटिंग कॉइल्ड अप इन ए बास्केट। वह आगे बढ़ चला और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने एक स्नेक चार्मर को देखा जो कि अपनी फ्लूट बजा रहा था और उसकी बास्केट में एक स्नेक पड़ा हुआ था। इट्स हेड वॉज रेज्ड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वेन एज दो इट वर enjoying the music which fell on its invisible ears. The child walked towards the snake charmer, but then he felt his parents would forbid him from hearing such coarse music, and so he walked on. स्नेक ने बास्केट में से अपना सिर ऊपर उठाया बिल्कुल एक स्वैन की नेक की तरह और वह उस म्यूज़िक को एंजॉय करने लगा। बच्चा स्नेक चार्मर की ओर बढ़ा लेकिन वह उसको देखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता इसके लिए भी उसको मना करेंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। As he walked further, the child saw a roundabout going round in full swing. जैसे ही वह आगे बढ़ा बच्चे ने एक राउंड अबाउट झूला देखा। There were men, women and children sitting on it and were going round in a whirling motion. उस झूले पर मैन, women और बच्चे बैठे हुए थे और वो whirling motion में घूम रहे थे। They were all shrieking and crying aloud in a kind of dizzy laughter. वे सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। The child stood and watched them keenly, and then he made a loud request that he wanted to go on the swing. अब बच्चा वहाँ खड़ा हो गया और कीन डिज़ायर के साथ उस झूले की ओर देखने लगा और फिर उसने एक ज़ोरदार रिक्वेस्ट की कि वह उस झूले पर जाना चाहता था। बट टू हिज सरप्राइज ही गॉट नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स बट ही कुड नॉट सी देम। ही लुक्ड इन ऑल डायरेक्शंस बट स्टिल कुड नॉट सी देम। लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। तभी उसने पीछे मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा, लेकिन वह उसे वहाँ पर दिखाई नहीं दिए।
उसने चारों तरफ अपने माता पिता को देखा, लेकिन वह उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। ही गॉट वरिड एंड स्टार्टेड क्राइंग। वह थोड़ा सा चिंतित हो गया और चिल्लाने लगा। देन सडनली ही रैन फ्रॉम द स्पॉट क्राइंग इन फियर। एज ही रैन shouting out for his parents, tears rolled down from his eyes. His face was hot and flushed due to fear. He began to panic and ran first in one direction and then in another, not knowing where to go. तब अचानक वो वहाँ से दौड़ा और डर के मारे चिल्लाने लगा और वह अपने माता पिता को ढूंढने के लिए दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। डर की वजह से उसका चेहरा गर्म हो गया था। वह बहुत ज़्यादा घबरा गया। कभी वह एक दिशा की ओर भाग रहा था और कभी वो दूसरी दिशा की ओर भाग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। He yelled out loudly for his father and mother. वह ज़ोर ज़ोर से अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। His yellow turban came off and his clothes became muddy. उसकी पीले रंग की टर्बन भी खुल गई थी और उसके कपड़े भी मैले हो गए थे। He ran in all directions like a mad person till he felt defeated. वह पागलों की तरह हर दिशा में दौड़ रहा था, लेकिन वो हार मान चुका था। His loud cries now changed into soft sobs. अब उसकी ऊंची ऊंची चिल्लाहट हल्की सी सुबकियों में बदल गई थी। At a little distance he could see men and women talking. कुछ ही दूरी पर उसने कुछ औरत और पुरुष को बातें करते हुए सुना। He tried spotting his parents in the crowd, but he could not. वह उस ओर दौड़ कर गया, लेकिन वहाँ पर भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिले। All that he could see were people laughing and talking simply for the sake of talking.